میں جیسے ہی اپنی ساس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ پرانے زمانے کے صندوق کے سامنے بیٹھی رو رہی ہیں۔ میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر مجھے ابھی ان سے کام تھا۔ میں نے انہیں مخاطب کیا تو وہ ہڑبڑا گئی اور میری موجودگی محسوس کرتے ہوئے فوراً سے صندوق بند کرنے لگی۔ مجھے بڑا عجیب لگا، جیسے وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ انہوں نے میرے کمرے میں ہوتے ہوئے فوراً اس صندوق کو دھکا لگایا۔ وہ صندوق فوراً سے بیڈ کے نیچے چلا گیا اور پریشان لہجے میں پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، کیوں بلا رہی تھی؟ آج سے پہلے میں نے کبھی ان کا اتنا حواس باختہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے میرا ان کے کمرے میں آنا انہیں بہت معیوب گزرا ہے۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی اور مجھے بلاتے ہوئے کہنے لگی باہر آؤ، باہر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، شاید وہ ابھی تک مجھے اپنا نہیں سمجھ پائی تھی اور فرق کرتی تھی۔ میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ میں جتنی پرجوش ہو کر اپنی ساس کے کمرے میں آئی تھی، میرا سارا جوش تھم گیا، چہرے پر اداسی چھا گئی۔ میری ساس تخت پر بیٹھی تھی، میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی میں نے تمہیں ڈانٹا تو نہیں ہے جو تم نے ایسے منہ بنا لیا ہے؟ ان کے اس طرح سے طنز کرنے پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تبھی وہ کہنے لگی تھی مجھ سے کیا بات کرنی ہے، جلدی بتاؤ، وہ بار بار پوچھ رہی تھی۔ اس لیے میں اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے انہیں بتانے لگی کہ مجھے بات کرنی ہے، بات زیادہ اہم نہیں ہے مگر ان کے مشورے کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی میں نے یہ کہا کہ جب میری ساس نے جھنجھلائے انداز میں کہنے لگی تم نے جو بتانا ہے بتاؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میری ٹوہ میں میرے کمرے میں آئی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ تبھی میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے دل اور دماغ دونوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نہ جانے انہیں نے ایسے کیوں سوچ لیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے اور ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی بہو جو بات کرنی ہے کرو۔ یکدم ان کا لہجہ بدلا تو مجھے تھوڑی ہمت ملی۔ میں انہیں بتانے لگی کہ حال ہی میں میری بہن کی شادی ہوئی ہے۔ میں آپ سے پوچھنے آئی تھی کہ جب آپ کہیں تو اس کو شادی کی دعوت دوں، کیونکہ میری ایک نند کی بھی ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ دونوں شادیاں آگے پیچھے ہوئی تھیں، اس لیے میں چاہتی تھی کہ دونوں کو ایک ساتھ ہی دعوت دی جائے۔ میری ساس کہنے لگی میں اپنی بیٹی کو ابھی دعوت نہیں دینا چاہتی، اس کا شوہر فوج میں ہے، وہ تو واپس چلا گیا ہے، جب داماد جی آئیں گے تو تبھی دعوت ہو سکتی ہے۔ تم ایسا کرو اگلے جمعہ اپنی بہن کو دعوت دے دو، اچھا نہیں لگتا زیادہ دن ہو جائیں گے تو شادی کی دعوت دینے میں بھی عجیب لگتا ہے۔ اس بات پر میں نے سر جھکا لیا کیونکہ میری ساس کو تانے مارنے کی بہت گندی عادت تھی اور انہوں نے ابھی بھی مجھے تانا مارا تھا، کیونکہ جب میرا ایک بیٹا پیدا ہو گیا تو تب میری بڑی بہن نے مجھے شادی کی دعوت دی تھی۔ اس بات پر میری ساس کی اور میری تھوڑی بہت بحث ہو گئی تھی۔ میری ساس کا ماننا تھا کہ شادی کے پہلے مہینے ہی دعوت دینی چاہیے، اگر دیر ہو جائے تو پھر دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی بھی ان کا بحث کا موڈ تھا مگر میں فوراً سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو شدت سے بہہ رہے تھے اور میں ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی مگر میں اور میری ساس اتنے بے تکلف نہیں تھے کہ وہ کوئی بات سمجھاتی تو میں غصہ نہ کرتی یا مجھے برا نہ لگتا۔ دراصل ابھی یہ رشتہ نیا بنا تھا تو مجھے ابھی وقت لگ رہا تھا اپنی ساس کو سمجھنے میں۔ 1 سال تو شادی کو ہو چکا تھا مگر میں ابھی بھی اپنی ساس کے مزاج کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ کبھی تو وہ بہت میٹھی بن جاتی اور کبھی تو ان کے لہجے میں کڑواہٹ ایک کریلے سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ بہرحال یہ سب ان کے موڈ پر انحصار کرتا تھا کہ اگلے بندے کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ ابھی میں اس بات پر آنسو بہا رہی تھی جب میری ماں کا فون آنے لگا۔ میں نے فوراً آنکھیں صاف کی اور ماں سے باتیں کرنے لگی۔ میں ان سے یہی شکایت کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے میری شادی کیسے لوگوں میں کر دی ہے۔ میری ساس بہت عجیب عورت ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہی ہے۔ اماں مجھے سمجھانے لگی کہ تم فکر مت کرو، اپنی ساس کا اعتماد جیتو کہ انہیں تم سے کچھ چھپانا نہ پڑے بلکہ وہ دوستوں کی طرح تمہیں ہر راز بتایا کریں۔ ماں کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ میں جب بھی کوشش کرتی کہ اپنی ساس کے ساتھ گل مل جاؤں تب میری ساس کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی جس سے مجھے بہت دکھ پہنچتا۔ اماں سے بات کر رہی تھی جب میرا بیٹا زوان اٹھ گیا۔
मैं उसे चुप करवाने में मसरूफ़ हो गई थी, जबकि मेरी सास सब्जी काटने लगी। बेटे को सुलाने के बाद मैं किचन में गई, खाना बनाया। अचानक सारे कमरे में खामोशी छा गई। मैं सोच में पड़ गई कि मेरी सास कहाँ है जो घर में इतनी खामोशी है, वरना उनकी मौजूदगी में खामोशी तो नामुमकिन बात थी। जब मैंने झांक कर सैन में देखा तो कोई भी नहीं था। सारा घर देख लिया मगर मेरी सास कहीं नहीं थी। मुझे लगा हम अपनी बेटी के घर गई होंगी, मगर अचानक मेरी सास के कमरे में से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से अपने सास के कमरे की तरफ आई तो देखा दरवाज़ा बंद था, लेकिन कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। मैंने झांक कर देखा तो मेरी सास ने अभी भी वही संदूक खोली हुई थी और उस संदूक से रखे हुए चीज़ें देखकर रोने लगी। मैं हैरान थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिन्हें देखकर वो हर वक्त रोती रहती हैं। मुझ में तजस्सुस बढ़ने लगा। अब मैं हर हाल में जानना चाहती थी कि इसमें ऐसा क्या है जिसे देखकर वो रोती हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। शायद मेरी सास को शक हो गया था कि खिड़की से कोई झांक रहा है। उन्होंने जल्दी से संदूक बंद किया और बाहर आकर देखने लगी। मैं जल्दी से किचन में चली गई। वो किचन में मुझे देखने आई, फिर सालन में नमक वगैरह चख कर दोबारा अपने कमरे में चली गई। अब मैं इस मौके की तलाश में थी कि कब मेरी सास घर से जाए और मैं वो संदूक खोलूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे वो इतना संभाल कर रखती हैं। रात का वक्त था, सब सो रहे थे। बगैर आवाज़ किए वो संदूक निकालने लगी जाके मैं, मगर ये क्या, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। मैं डर गई। मैंने सारा कमरा छान कर देख लिया मगर वहाँ कुछ भी नहीं था, जिसने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया। चंद घंटों में आखिर मेरी सास ने वो संदूक कहाँ की थी। अभी मैं वहीं परेशान होकर खड़ी थी जब किसी का सर्द हाथ मेरे कंधे पर आ लगा। मेरी सांस रुक गई और आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुड़कर मुकाबल खड़े वजूद को देख सकूं। तभी मैंने आयत कुर्सी का विर्द करते हुए खुद को घुमाया तो देखा सामने मेरे शौहर खड़े थे। वो हैरान होकर पूछने लगे, रात के इस पैर तुम क्या कर रही हो? तो मैं कहने लगी, ज़ुहान का फीडर नहीं मिल रहा। मैं उससे ढूंढ रही थी कि सारा दिन ज़ुहान आज आंटी के कमरे में सोया रहा। परेशानी हो रही थी, इसलिए रात के इस पैर आंटी के कमरे में आई। और ये भी तो मेरे घर का हिस्सा है, भला यहाँ मेरे आने पर पाबंदी है क्या? मैंने सवाल किया तो मेरे शौहर शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, अच्छा खैर है, मैं तो वैसे ही उठा तो सोचा पूछ लूँ कि अंदर कौन है। आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं, ख्याल करो। वो बैठ सैन में जाकर अपनी चारपाई पर सो गए। मैंने सुख का सांस लिया। खुद को पुरसकून करते हुए मैं बाहर चली आई और सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। काफ़ी देर में चारपाई पर पड़ी रही मगर नींद नहीं आ रही थी। तभी आहट हुई। इस आहट पर बगैर अपने वजूद को हरकत किए जल्दी से आंखें खोलकर देखा तो मेरी सास परेशान होकर उठी और जल्दी से अपने कमरे में चली गई और जाके लाइट ऑन की, सारी खिड़कियां बंद की और दरवाजे को भी लॉक लगाया। मुझे फिर से उसी संदूक की घसीटने की आवाज़ आने लगी। मैं ऐसे उठकर बैठी जैसे सूर फूंक दिया गया। जल्दी से बगैर जूते के अपनी सास के कमरे तक आई और खिड़की से झांकने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अब मेरी सास उसे कैसे बाहर निकाल रही थी। इससे पहले मेरी सास बाहर आती, मैं जल्दी से भागते हुए वापस अपनी चारपाई पर सो गई। थोड़ा सा शोर हुआ, मेरे शौहर उठकर बैठ गए। तब उन्होंने अपनी माँ को उनके कमरे से निकलते देखा तो चुपचाप सो गए। मैंने शुक्र अदा किया कि खुदा ने एक बार फिर मुझे बचा लिया था, वरना तो मेरी सास को पता चल जाता कि मुझे संदूक के बारे में इल्म हो चुका है। शादी को 1 साल हो चुका था। मेरी सास ने कभी भी मुझे इस संदूक के बारे में कुछ नहीं बताया था। सुबह मैं उठी तो मेरी सास खासी भरम दिखाई दे रही थी, जैसे उसे पता चल चुका हो कि मैं यहाँ उसके कमरे में संदूक ढूंढने आई थी। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, मगर मैं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने जताया नहीं कि मुझे उनकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मुझे कोई कंफर्म नहीं था कि वो मुझसे नाराज़ हैं या नहीं। लेकिन उनका रवैया कुछ बदला बदला था। लेकिन मैंने भी हिम्मत करके अपनी सास से सवाल किया कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जिसे वो हम सब से छुपाना चाहती हैं। तो उन्होंने फ़ौरन से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कपड़े हैं और इसकी टो में ना रहो। सास का जवाब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। जब तो 3 बार पूछा तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया। मुझे लगा जब तक मैं इसे खोल कर देख ना लूँ
तब तक मेरी सास मुझे सच नहीं बताएगी। अगली सुबह जैसे ही मेरी सास अपनी बेटी के घर गई, मैं फौरन से उनके कमरे में पहुंची और संदूक ढूंढने लगी। वो संदूक मुझे बेड के नीचे ही मिल गया, मगर उस पर काला कपड़ा रखा हुआ था। उसकी वजह से वो रात मुझे दिखाई ना दिया, जिसकी वजह से मैंने समझा कि वहाँ कुछ नहीं है। जल्दी से इस कपड़े को खींचा तो देखा वो संदूक खासा पुराना था। मैंने उस संदूक को घसीटना चाहा तो वो मुझसे हिल भी नहीं रहा था। बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद उसे मैं बाहर खींचने में कामयाब हो गई। अभी मैंने उस संदूक को निकाला ही था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास हैरान होकर मुझे देख रही थी कि मैं इस तरह संदूक को खोलने की कोशिश करूंगी, जबकि मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे थे। मुझे लगा था आज तो मेरी सास मुझे नहीं छोड़ेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। संदूक को खींचकर वापस बेड के नीचे रखा। मुझे कहने लगी, जब मैं मर जाऊंगी तब ही इसको खोलना, इसे पहले खोलने की इजाज़त नहीं। ना तो वो गुस्से में थी और ना ही खुश थी। ये सब कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे कमरे से निकाल दिया। मैं उनका रवैया देखती रह गई। मुझे उनका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर मैं क्या करती। वो मेरी सास थी और मेरी माँ की उम्र की थी, इसलिए मेरे लिए मौत पर थी। मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि पलट कर जवाब ही नहीं दे सकती थी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और सास से बोलना छोड़ दिया। तभी एक रोज़ सास ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, मैं जानती हूँ जिन वक्तों में तुम दोनों की शादी हुई मैं तुम्हें कुछ खास दे नहीं सकी, इसलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम संदूक को लाजमी खोलना। मैंने उसमें तुम्हारे लिए कुछ रखा है, उम्मीद करती हूँ कि तुम इन चीज़ों को संभाल कर रखोगी। मेरी सास के अल्फाज मुझे बहुत दुख पहुँचा रहे थे। मैं कुछ कहती कि आंटी, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और आपका साया हम पर हमेशा सलामत रहे, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तो वो कहने लगी, बस वैसे ही बेटा, दिल उदास था तो तुम्हें कह दिया, अब तुम मेरी बात की लाज रखना। मैंने इसाबत में सर हिला दिया। अब तो मेरे तजस्सुस में इजाफा हो चुका था, मगर मौका नहीं मिल रहा था। एक रोज़ जब मैं अपने मायके गई हुई थी तो मेरे शौहर की कॉल आई कि अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी से घर आओ, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। उनके साथ एक औरत का होना लाजमी है। मैं जल्दी से बच्चे को अपनी बहन के पास छोड़कर अस्पताल चल गई, जहाँ मेरी सास और शौहर पहले ही पहुँच चुके थे। काफ़ी देर डॉक्टर कोशिश करते रहे, मगर वो कामयाब ना हो सके और मेरी सास वफात पा गई। उनकी वफात पर मैं बहुत रोई। मेरे जहन से भी संदूक का ख्याल निकल चुका था। मेरी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो चुकी थी। सास घर का ज़्यादातर काम कर देती थी, अब वो नहीं थी तो सारा काम और सारा घर मुझे ही संभालना पड़ रहा था। दूसरी बात, मैं हामला थी, इसलिए चिड़चिड़ी हो रही थी। बात बात पर मुझे गुस्सा आता और हम दोनों मियाँ बीवी की बहस हो जाती। घर में तो गुर्बत ने डेरे डाल लिए थे। ये कोई नई बात नहीं थी, गुर्बत तो हमें विरासत में मिली थी। हम लोग सफ़ेद पोश लोग थे, जहाँ फाके करके हम लोग जाहिर नहीं होने देते कि कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मायके में भी यही तरबियत मिली थी और ससुराल में वही काम आई। हम 3 बहनें और 3 भाई थे। अब्बा की किराने की दुकान थी, इतनी कमाई ना होती जितने खाने वाले थे, इसलिए अक्सर हमें भूखा सोना पड़ता। और यहाँ भी यही रिवायत कायम थी। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा परेशान था और बार बार यही कह रहा था कि अगर तुम अपने बाप से कुछ पैसे उधार ले लो तो मैं कोई कारोबार शुरू कर लूँ ताकि हम कुछ जमा कर सकें। मैं एक बेटी को जन्म देने वाली थी और मेरे शौहर को अभी से उसकी परवाह थी कि वो कहते थे कि हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए हमारी आमदनी में भी इजाफा होना चाहिए, वरना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनकी फिक्रें भी जायज़ थी। वो बाप था और पैसे कमाने की जिम्मेदारी भी उसकी थी। मैं कैसे अपने बाप को कहती कि आप जिस घर में रह रहे हो मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए। मैं ये कभी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने शौहर को इनकार कर दिया तो वो आग भगोला हो गया। बहरहाल हमारी बहुत बहस हुई और दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली। ना तो मैं उनकी कोई मदद कर सकती और ना ही वो कहीं से कर्जे का इंतज़ाम कर सकते थे। मैं बच्चों और घर के कामों में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि इर्द गिर्द का होश नहीं था। सास फौत हुई तो मैं उसके कमरे में जाना ही छोड़ चुकी थी। वो कमरा कब से बंद था। एक रोज़ बच्चे अपने नाने के घर गए हुए थे और शौहर दुकान पर था। मैंने सोचा फारिग खड़ी हूँ, सास के कमरे की सफाई कर लेती हूँ, कब से वो बंद पड़ा है। जब मैं वहाँ झाड़ू लगाने लगी तो मुझे एक बड़ा संदूक दिखाई दिया। मैं खुशी से झूम उठी और उसको घसीटा देखा
ताला लगा हुआ है, चाबी ढूंढने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ईंट से वो ताला तोड़ दिया और जैसे ही उस संदूक का ताला खोला, ये देख कर हैरान रह कि उसमें तो बहुत सारे कपड़े थे, कपड़ों के अलावा कुछ खिलौने जो बहुत मैले पड़े हुए थे। मैंने सारी चीज़ें बाहर निकालना शुरू कर दी। वो बहुत आम सी चीज़ें थी, जैसे किसी छोटी बच्ची की तमाम चीज़ें इकट्ठी करके रख दी गई हों। इसमें से बचपन से लेकर जवानी तक जो जो इस्तेमाल किया उसकी माँ ने छुपा कर रख दिया। मुझे लगा मेरी सास पहले से ये जानती थी कि मैं एक बेटी को जन्म देने वाली हूँ, इसलिए उसने सारी चीज़ें छुपा कर रखी हुई थी। मगर उन्हें कैसे पता? इस सवाल ने खलबली मचा दी। मैं जैसे जैसे संदूक से चीज़ें निकाल रही थी, ऐसे ही हैरान होती जा रही थी। उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थीं जो जली हुई थीं। सारी चीज़ें निकालने के बाद संदूक में से 6 डब्बे सोने के जेवरात के निकले। मैं सोचने लगी, ये जेवर के डब्बे कहाँ से आए? मुझे लगा मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, क्योंकि मेरी सास और शौहर जैसे ही जिंदगी जी रहे थे तो कोई सफेद पोश ही जी सकता है। मैंने डब्बों को खोलना मुनासिब ना समझा, मगर फिर तजस्सुस के मारे मैंने उन डब्बों को खोल दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने उन सोने के जेवरात देखे। अभी मैं इन जेवरात में खोई हुई थी जब मेरे शौहर अचानक से आए। उन्होंने मुझसे डब्बे खींच लिए। मैं फौरन से डर गई थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मैं हैरान होकर शौहर की जानिब देखने लगी तो वो गुस्से से घूर रहे थे। कहने लगे, तुम्हारे पास ये जेवर कहाँ से आए हैं? अभी मैं उनको सफाई देने के लिए आगे बढ़ी, उनकी नज़र इस जले हुए सामान पर पड़ी जिससे मैंने फालतू समझकर बाहर फेंक दिया था। वो कहने लगे कि तुम भी नुसरत के साथ मिली हुई हो। मैंने पूछा, नुसरत कौन है? क्योंकि मैं किसी नुसरत को नहीं जानती थी। तभी मेरे शौहर ऐसे खौफजदा हो गए जैसे उसकी मैंने कोई गलती पकड़ ली। वो टाल मटोल से काम लेने लगे और कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे अपने कमरे में आ गया और कहने लगे, ये नुसरत कौन है? तो वो कहने लगे, नुसरत कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन थी और आज तक किसी ने मुझे बताया ही नहीं। जब भी वो कहने लगे कि वो घर से भाग गई। अब्बा और मैं उससे बहुत नफरत करते थे, इसलिए अम्मा को हमने कह दिया था कि आइंदा अपनी बेटी का जिक्र भी ना करना। उसका सारा सामान भी हमने जला दिया था। अम्मा रोती रही, तड़पती रही। उनका बार बार यही असरार था कि उनकी बेटी को घर से ना निकाला जाए, क्योंकि मेरी बहन जिस लड़के के साथ भागी थी वो उसे एक होटल में अकेला छोड़कर भाग गया। मेरी बहन तो बच गई थी। अब वो 2 रातें बाहर गुजारने के बाद घर आई तो अब्बा और मैंने उसे खूब मारा और घर से निकाल दिया। अम्मा हमें रोकती रह गई। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मा आज भी उसे याद करती हैं और उसकी चीज़ें उन्होंने संभाल कर रखी हुई हैं। मुझे लगा कि शायद वो भूल चुकी हैं और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ये कहकर मेरा शौहर रोने लगा। तब मैंने वो सारे जेवरों के डब्बे उठाए और उनके सामने रख दिए। वो हैरान होकर मेरी जानिब देख रहे थे और कहने लगे, ये सब क्या है? तो मैं कहने लगी कि माँ जी ने कहा था मेरे मरने के बाद ये संदूक खोलना। मैंने संदूक खोला तो उसमें से ये सारा जेवर निकला। मेरा शौहर खुश हो गया और जल्दी से सुनार के पास ले गया। वो सारा सोना असली था। हम दोनों अभी सुनार के पास बैठे हुए थे जब एक मांगने वाली आई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने पैसे देकर नज़रअंदाज कर दिया, मगर मेरा शौहर काफ़ी देर तक उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो बेकारन मेरे शौहर को पहचान चुकी थी। वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगी। जब मेरे शौहर आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, नुसरत कब तक मुझसे भागती रहोगी? हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं। तुम्हें घर से निकालने के बाद मेरा तुमसे कई दफ़ा सामना हुआ है। तुम्हें इस हाल में मैं मज़ीद नहीं देख सकता। हमारे साथ घर चलो। तब मुझे पता चला कि वो मेरी नंद है, जिसे मेरे शौहर और ससुर ने घर से निकाल दिया था। मैं उसे जिंदा पाकर हैरान थी, जबकि मेरा शौहर मुसलसल रो रहा था। दोनों भाई बहन जज्बाती होकर एक दूसरे को गले लगाया। मेरे शौहर उसे लेकर घर आ गए। मुझे अपनी नंद से हमदर्दी थी। जल्दी वो सब के साथ घुल मिल गई। उसकी हालत पहले से अब अच्छी हो गई थी। मेरे शौहर ने कारोबार किया और हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते गए। आज हमारा घराना हमारे खानदान में सबसे ज़्यादा खुशहाल है और ये सब मेरी सास की बदौलत हुआ है। अगर वो जेवर संभाल कर ना रखती तो शायद ही हम कभी कामयाब हो पाते। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। बेशक वो हम सब के हक में बेहतर करने वाला है।